अब मुझे नहीं सुना, नहीं सुना, दिख रहा है कैसे बताया मुझे क्या दिक्कत आ रही? नहीं कम नहीं हुआ, आवाज जूम ही खत्म हो गया, आ ही नहीं रहा उसमें। क्या दिक्कत हो गई? स्टूडेंट्स को बोलोगे प्लीज स्विच ऑन द कैमरास। Good afternoon, all. I hope it's audible. Is it audible? Students, I request all of you to please switch on your videos, and the panelists are also requested to please switch on their videos. Manoj sir, Shaggy sir, Rohit sir, and Vineet sir. We are about to start the session in another 2 minutes. So I request all of you to please switch on your videos. उनको बोलो मैसेज कर दो. I request Sagir sir to please switch on the video. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. How are you? I am good, ma'am. Okay. Am I audible, sir? Yes, you are, ma'am. Thank you. So now we'll be starting with the session. A very warm welcome to everyone present here today. We are gathered for this insightful webinar on the theme where learning meets industry. This session is designed to bridge the gap between classroom knowledge and real-world practices, giving our students the opportunity to understand how learning truly translates into industry success. We are honored to have with us the esteemed industry panelists, Sagir sir and Rohit Biduri from Mr. Sagir from Pazza Factory Head from Shivalik Design, Faridabad, and Mr. Rohit Biduri as an eye expert from and a inspirational speaker also from Mamani Overseas. We welcome both of you, and through their perspective, other guests are also joining. So we'll be giving the introduction in the between. And I request both the panelists that with their perspective, we will be able to explore the journey, how the students can acquire the skills and apply them effectively in the workplace. And as a moderator, I myself, Dr. Neetu Kapoor, will be voicing the cautions and curiosities of our students, ensuring that today's discussion remains practical, interactive, and impactful.
Together, let's discover how learning involves when it meets industry. So a big round of welcome to the panelists. As an industry, the production planning and perspectives, Sagir sir and Rohit ji, I will be asking some questions from you. ये हमारे स्टूडेंट्स के थ्रू ही कुछ हमने जानना चाहते हैं कि आप स्टूडेंट्स बहुत जब ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, या जो स्टूडेंट अभी ज्वाइन करना चाहता है वो भी सोचता है कि मुझे क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, और हर एक डिपार्टमेंट की अपनी एक वैल्यू है। तो मैं प्रोडक्शन एंड प्लानिंग से स्टार्ट करना चाहूंगी, जिसमें मैं शगीर सर और रोहित जी से उनके व्यूज पूछूंगी। तो मैं पहले शगीर जी से क्वेरी करना चाहती हूँ, ये पूछना चाहती हूँ कि what are the common gaps you notice in fresh recruits when they join the production and planning department? शगीर सर, आप बता सकते हैं कि जैसे हमारे हाँ जी सर। गुड आफ्टरनून टू ऑल। जैसा मैम ने अभी इंट्रोडक्शन किया था, मैं अभी शिवालिक में हूँ और प्रोडक्शन के लिए जो पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं सोचता हूँ क्या स्टूडेंट्स को उनको थोड़ा नोट करना चाहिए और थोड़ा नोटिस में भी रहना चाहिए। एक्चुअल में प्रोडक्शन जो है वो देखा जाए तो एक आर्ट है। कोई हम इस तरह से उसमें जो कमियां हैं या फिर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको राइट डाउन कर सकते हैं कुछ को, लेकिन हम सारी को राइट डाउन नहीं कर सकते। सारी प्रॉब्लम्स जो हैं जो सामने फेस करते हैं वो सारी हम सबको नोट डाउन नहीं कर सकते। आपको नहीं सारी जगह नई प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए जो है सबसे कॉमन ये है कि अपना बिल्कुल ओपिनियन जो भी जिस चीज़ के लिए कुछ बना लिया है, कॉन्स्टेंट चीज़ कर ली है, उस पर ना जाएं और ऑन द स्पॉट आपको क्या चीज़ फाइंड आउट हुई है, क्या मिली है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, वो एक बहुत कॉमन चीज़ है जो हम देखते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम आ गई, इसमें ये प्रॉब्लम आ गई। 5-7 प्रॉब्लम्स जो हम सारे लोग ही जानते हैं, स्टूडेंट्स भी जानते हैं, जो हम प्रैक्टिकली करते हैं उसमें भी आती है। लेकिन जो ऑन द स्पॉट आती हैं वो एक डिफरेंट चीज़ आती हैं। तो अपना बिल्कुल जब प्रॉब्लम आए तो उसके बारे में सोचना है और उसी के बारे में उसको सोल्यूशन निकालना है। जैसे लाइक दैट डॉक्टर है, डॉक्टर को प्रॉब्लम तो उसको बताएगा पेशेंट के, उसको जो है वो फीवर है, लेकिन ये डॉक्टर को ढूंढना पड़ेगा प्रॉब्लम है क्या, रीजन क्या है, सॉल्यूशन क्या है। तो ये एक कॉमन और छोटी सी बात है जिसको बहुत ध्यान से समझना और सोचना पड़ेगा इस चीज के लिए। थैंक यू सर। रोहित जी, आप इसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि क्या कॉमन गैप्स होते हैं जब आप एक फ्रेश रिक्रूटमेंट को देखते हैं, चाहे वो किसी भी सेंटर कहीं से भी हो, क्या आप कॉमन गैप्स देखते हैं स्टूडेंट्स के अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल नीतू मैम, गुड आफ्टरनून आपको और आपके जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं सबको गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस प्लेटफॉर्म। मैम बेसिकली जो मैंने एक चीज़ देखी, जो भी स्टूडेंट्स हमको मिलने आते हैं या फिर इंटरव्यूज के लिए आते हैं, तो उनके अंदर मैंने बेसिकली 4 चीज़ें बड़ी कॉमन पाई जाती है मेरे को। जब वो बंदे हमारे को ज्वाइन कर लेते हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो उन लोगों के अंदर मुझे 4 चीज़ें पाई जाती हैं और उन 4 चीज़ों को मैं ऐसे डिसाइड करूँगा लाइक CCPT। C स्टैंड फॉर द कम्युनिकेशंस, उनकी कम्युनिकेशंस उनका बैरियर होती है सबसे पहली चीज़ है। दूसरा कोऑर्डिनेशन, P स्टैंड फॉर द प्रैक्टिकल एक्सपोजर की कमी होती है उनके पास, एंड T स्टैंड फॉर द टाइम मैनेजमेंट। जब आपके पास बेसिकली अभी थ्योरेटिकल नॉलेज लेकर आप इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, बट हमने जो गैप देखा है बेसिकली कि थ्योरेटिकल नॉलेज एक समय तक आपकी हेल्प करती है, बट जब हम प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कमी नजर आती है बहुत ज्यादा, राइट। तो उस कमी के लिए वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपने बॉस के साथ, अपने सीनियर के साथ। उनको लगता है कि यार सीनियर है, कहीं मुझे डांट ना दें, फटकार ना दें। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, आपको कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, और कम्युनिकेशन के साथ साथ कोऑर्डिनेशन की भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है स्टूडेंट्स को। अगर वो गैप्स को अगर आप फिल करना चाहते हो कि आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज और मतलब टेक्निकल नॉलेज, बुकिश नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज जब दोनों का मिलन हो जाता है ना मैम, तब आप धमाका कर सकते हो इंडस्ट्री के अंदर। और उसी के साथ साथ ये चीजें भी देखने को मिलती है कि स्टूडेंट्स के अंदर टाइम मैनेजमेंट की कमी बहुत ज्यादा पाई जाती है। टाइम मैनेजमेंट उनको पता नहीं होता कि अगर मेरे को कंपनी ने 8 घंटे दिए तो मेरे 8 घंटे वो कैसे कैसे बीतने चाहिए, राइट। क्योंकि अभी तक तो वो स्वैग वाला नेचर रहता है उनका, कॉलेज में रहते हैं स्टूडेंट्स लाइफ में, बट उनको समझना पड़ेगा नाउ यू आर कमिंग इनटू द प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपको टाइम की बड़ी कीमत है आपकी, और उसी टाइम के अंदर रहकर आपको प्रेशर को भी कैसे हैंडल करना है। जब ये 4 चीजें पे अगर पैटर्न पे अगर मेरे स्टूडेंट्स काम कर लेता है तो मैम ये कॉमन गैप बहुत छोटी सी चीज है,
बहुत मतलब बारीकी चीजें अगर इन पे वो काम कर लेते हैं तो बहुत अच्छी सफलता वो इजिली प्राप्त कर सकते हैं। और अगर सही मेंटोरशिप, सही गाइडेंस अगर उनको मिल जाए, जो उनको कम्युनिकेशन इंप्रूव करा दी उनकी, प्रोफेशनल, मैं वैसे बात तो हर कोई कर लेता है, मैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनल कोऑर्डिनेशन एंड प्रोफेशनल टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल प्रेशर हैंडलिंग। पता लगा प्रेशर में आपने किसी को उल्टा बोल दिया, किसी को गाली गलौज कर दी, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट? तो ये जब ये 4 पैटर्न्स पे आप काम करते हो, देन यू बिकम द रॉक स्टार इन दिस इंडस्ट्री। यस, थैंक यू सो मच रोहित। इट इज रियली गुड दैट स्टूडेंट्स को ये सब कुछ सुनने को मिल रहा है। शकील जी, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आप स्टूडेंट्स को, एटीडीसी के स्टूडेंट्स आपके पास में आते हैं, तो हाउ डू एटीडीसी स्टूडेंट्स स्टैंड आउट इन टर्म्स ऑफ अडैप्टिंग इन प्रोडक्शन, टाइमलाइंस, क्वालिटी एंड डिसिप्लिन? आपके पास डिपार्टमेंट में जब स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तो किस तरह से अडैप्ट करते हैं ये? एडोप्टेशन तो इनका शकील जी, आपसे जी जी जी, एडोप्टेशन के लिए कहता हाँ हूँ, जी। एडोप्टेशन इन स्टूडेंट का जो है वो अच्छा होता है। एक्चुअल में कुछ स्टूडेंट इस तरह के होते हैं जो थोड़ा लाइटली ले लेते हैं चीज़ों को, लाइटली, मतलब जैसा अभी सर ने जी बोला था, क्या अभी एक स्टूडेंट लाइफ से निकल के प्रोफेशनल लाइफ में मूव किया है, तो कुछ चीज़ें उनके लिए नई होती है और उसको वो समझने में उसको काफ़ी टाइम लगा देते हैं। तो अगर जो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखकर, जब अब एक पूरा फेज ही चेंज हो जाएगा, उस चीज़ में अगर जो स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखें खास तौर से, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे अभी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन क्वालिटी और बजट डाइनिंग इसमें है, तो क्या होता है कि खास तौर से प्रोडक्शन में एक क्लासरूम से निकलने के बाद में एक सैकड़ों लोगों के बीच में जाना पड़ता है उनको। तो डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं। क्लास में क्या होता है, सबका एक ही फोकस होता है, गोल एक होता है, लेकिन वहां पर गोल तो सबका एक होता है, लेकिन सारे लोगों की मेंटलिटी अलग होती है। कोई किसी तरह का होता है, कोई किसी तरह का होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स में लिसनिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। सामने वाले को समझना चाहिए कि वो किस तरह से और किस वे में बात कर रहा है, क्योंकि सारे खिलाड़ी होते हैं, तो वो किसी वे में बात करते हैं और उसका आंसर कुछ और रहता है। तो इस चीज को खास तौर से ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट्स को कि पहले एक बार लिसन करें, उनको सुने समझें और उनका गोल क्या है उस पर थैंक यू ध्यान सर। रखें। थैंक यू सर। जैसे सर आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं, कई बार स्टूडेंट्स आते हैं आपके पास किसी वोकेशनल ट्रेनिंग से, एटीडीसी से भी आते हैं, कहीं और से भी आते हैं, और कई बार कुछ ऐसे भी कैंडिडेट आते हैं जो ट्रेन नहीं होते हैं, यानी कि उन्होंने कोई कोर्स नहीं किया होता है। तो क्या डिफरेंस आपको दिखाई देता है? मतलब वो स्टूडेंट ज्यादा बेटर हैं जो क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग करके आए हैं, या जो अनट्रेन होते हैं वो ज्यादा बेटर है? आप ऑब्वियसली मैम, जो ट्रेनिंग के बाद ही आए हैं वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। जो ट्रेनिंग के विदाउट ट्रेनिंग के आए हैं तो उनमें गैप ज़्यादा रहता है। बेसिकली गैप क्या, उनको पहले बेसिक चीज़ें समझनी पड़ती हैं, उनके लिए सारी चीज़ें नई होती हैं, ये क्या हुआ है। और जो यहाँ से आते हैं उनको किसी भी चीज़ के लिए बेसिक नॉलेज तो सारी होती है। एक्चुअल में उनको सारा सिलेबस उनको पता होता है, उनको प्रैक्टिकल एक तरह से देखना होता है, और उसमें स्टूडेंट प्रैक्टिकल भी कुछ करके आते हैं। तो बेटर जो है वो ट्रेनिंग के बाद ही है। थैंक यू सर। रोहित, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके पास तो कोई एग्जांपल्स होंगे, स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं कि ऐसा कोई एग्जांपल या इंटर्नी जिसने आपको ये प्रूव किया हो कि हाँ वाकई में वो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आया है और उसने बहुत अच्छा किया, तो ऐसा कोई एग्जांपल आपके पास में है जो आप शेयर करना चाहेंगे? मैम पास्ट में मेरे साथ एक एक्सपीरियंस रहा है बेसिकली, अभी तो नहीं, मैंने ओखला से मैंने कोई स्टूडेंट को लिया था मैंने अपने पास। तो जब मैं वहाँ पे इंटरव्यू लेने गया था, तो मैम इंटरव्यू के टाइम पे बेसिकली मैं 2 से 3 चीज़ें पूछता हूँ, मैं ज़्यादा लंबी चीज़ें कहानी नहीं पूछता। उनसे पूछता हूँ कि उनका विजन क्या है, वो वाई दे आर वांटेड टू कम इनटू दिस इंडस्ट्री, और उनको करना क्या है जीवन के अंदर, बस दैट्स इट। अगर मुझे उनके अंदर स्पार्क नजर आ जाता है कि हाँ कुछ करना है इसके अंदर, तो फिर उसको मैं अपने गाइडेंस के अंदर मैं ले लेता हूँ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैम कई बार क्या होता है ना कि मैं अपने आप को भी चेक करने के लिए और स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज को चेक करने के लिए ना एक ही प्रोफाइल के अंदर मैं 2 लोगों को रख लेते हैं, राइट? एक तो हो गया पढ़ा लिखा है लेकिन ही इज नॉट पास आउट फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, एक है बंदा एटीडीसी से पास आउट है, बट एटीडीसी के पास एक एटलीस्ट वो एक सेंस होता है कि हाँ यार जो सर मेरे से बात कर रहे हैं, लाइक सैम की बात कर रहा हूँ,
प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, तो उसको पता है ये टर्म्स उसने पढ़े हैं कहीं ना कहीं। जो नया बच्चा होता है जो एटीडीसी से पास आउट नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट से नहीं है, तो उसके साथ हमको बहुत समय लगाना पड़ता है कि भाई इसको सैम बोलते हैं, इसको प्रोडक्शन बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी और सैम में क्या डिफरेंस है। तो एटीडीसी के साथ इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती है पहली बात तो। लेकिन जब मुझे एक चीज और पता लगती है कि एटीडीसी वाले को जब हमने पहले से ही हमने उसकी छटनी कर ली इंस्टीट्यूट के अंदर कि अब मेरे को किस लेवल की पर्सनैलिटी आपको बनना है, तो जब उसके साथ हम उसकी हैंड होल्डिंग करते हैं, जैसे मैंने बताया था, मैंने ओखला से एक स्टूडेंट को लिया था, उसको जब मैंने अपना विजन शेयर किया कि भाई आपको मैं अपने पास जो रख रहा हूँ मेरा पर्पस ये है, सो दैट कि मैं आपको अगले 6 महीने में आपको नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाना चाहता हूँ, तो 6 महीने के अंदर वुड यू बी प्रिपेयर्ड टू योरसेल्फ। तो जब वो हाँ में हाँ मिलाते हैं तब मैं अपना 110% देता हूँ। हालांकि मैंने कई लोगों के साथ से काम किया, बट उनमें से 10-12 लोगों में से एक बच्चा जरूर मेरे पास ऐसा निकला था जिसकी माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस थी, और आज की डेट में वो बच्चा मेरे साथ एज ए सीनियर एग्जीक्यूटिव काम भी कर रहा है आज की डेट में। ही जॉइंड एज अ ट्रेनी, हार्डली फॉर द लाइक 10 to 12,000 रुपीज, राइट, 4 to 5 years बैक। आज मेरे पास में वो 45,000 रुपए में काम कर रहा है। सो दैट इज अ गुड थिंग कि मेरे साथ सीखकर आज भी वो मेरे ही साथ काम कर रहा है। तो ये डिफरेंस देखने को मिल जाता है मैम। थैंक यू सो मच रोहित जी। शगीर सर, आपके पास कोई ऐसा एटीडीसी का कोई स्टूडेंट है जो जिसने काम किया और आपको देख के लगा हो कि वाकई में एटीडीसी में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि पहले भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं अब भी आ रहे हैं, तो ऐसा कोई एग्जांपल आपके पास में जो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, इसमें 2 स्टूडेंट मेरे पास ऐसे थे टीटीसी के, एक नीलेश और एक राहुल। उन 2 लोगों ने मेरे पास आई की प्रोफाइल में काम किया था, और आज वो दोनों फैक्ट्री हेड हैं, नीलेश भी और राहुल भी। तो बहुत अच्छी देखिए, स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट चाहे तो आप अपनी इस लर्निंग को, जो हमारा बेसिकली आज का मेन मोटिव यही है कि हम इंडस्ट्री के लोगों के एक्सपर्ट्स को पैनलिस्ट में बुलाया है ताकि हर एक पर्सपेक्टिव से वो जान पाए स्टूडेंट की जो वो करना चाहते हैं वो ऐसे कोई चीज नहीं है जो मुश्किल है। करने के लिए करेक्ट। बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर राइट गाइडेंस के थ्रू, अगर राइट प्रोसेस और पाथवे को चूज करेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छी अचीवमेंट कर सकते हैं। सो अब मैं प्रोडक्शन के बाद में मैं मार्केटिंग से कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगी। मनोज जी, आप, आई होप आपने ज्वाइन करा है। मनोज जी, मनोज सर, एम आई ऑडिबल? मनोज सर, मनोज सर शिवालिक से है ना? मनोज सर आप ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ जी। या नीरा मैम, आपने ज्वाइन कर लिया है मार्केटिंग एचआर पर्सपेक्टिव से? अगर मैं जर्नल भी पूछना चाहूँ, अभी जब तक आप दोनों भी हैं, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि अगर हम कहें कि आपको, कि आप व्हाई वुड यू रिकमेंड एटीडीसी कोर्सेज टू द एस्पायरिंग स्टूडेंट्स? आप क्यों रिकमेंड करना चाहेंगे एटीडीसी के कोर्सेज जो बच्चे करना चाहते हैं? रोहित जी, शकीर जी, आप में से कोई अगर बताना चाहे तो। मैम मैं तो बेसिकली यही बोलना चाहूंगा कि मैं इवन खुद एटीडीसी पास आउट हूँ। तो एटीडीसी आज जो भी कुछ भी हूँ, इसकी जो पीछे की जो बीज जो बोया गया था बेसिकली आज से 15 साल पहले, तो वो एटीडीसी का ही पार्ट था। एटीडीसी हमारी लाइफ में नहीं आता तो शायद आज हम यहाँ ना होते। एटीडीसी ने एक विजन शेयर करा, एक आइडिया दिखा, एक स्पार्क पैदा किया हमारे अंदर कि यार कुछ कर सकते हैं। बट वो सिर्फ एटीडीसी ने एक स्पार्क पैदा किया था, उस स्पार्क को आग का रूप तो हमने खुद अपने आप दिया था इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद। तो बट मैं लोगों से और स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूंगा कि एटीडीसी जो बेसिकली है मैम एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ काम करते हैं। उनको इंडस्ट्री के नॉर्म्स पता है कि भाई कंप्लायंस, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, आई, मर्चेंडाइजिंग, ये सब उनको पता होता है इंडस्ट्री के अंदर। तो उन्होंने इंडस्ट्री के बेस पे ही सारे कोर्स की आउटलाइन को डिजाइन किया हुआ है। अगर वो बच्चा यहाँ से पढ़ करके आता है और उसको फैशन इंडस्ट्री के अंदर अपना को प्रूफ करना है या अपने करियर को बिल्डअप करना है, तो एटीडीसी वुड बी लाइक अ बेंचमार्क फॉर देम। वो बेसिक चीजें वहां पे सीखे और एक अच्छे सीनियर के साथ हैंड होल्डिंग सपोर्ट अगर उसको मिल जाए, तो मैम मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ ये निफ्ट हो या पर्ल हो, ये कहने के लिए बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, लेकिन एटीडीसी के बच्चे के अंदर ना मैंने वो स्पार्क जरूर देखा है। अगर उनको सही टाइम पे सही मेंटरशिप मिल जाए तो धमाका मचा सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर। दैट आई हैव ऑलरेडी सीन। बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं वो। एंड आई वुड रिकमेंड एवरीबॉडी कि आपके फ्रेंड्स या फ्रेंड्स के भी फ्रेंड्स हो तो एटीडीसी उनको जरूर ज्वाइन कराना चाहिए। थैंक यू सो मच अगर शगी जी। एटीडीसी जी
मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा आंसर को। फर्स्ट ये है कि अब एक एटीडीसी में आने के बाद में स्टूडेंट्स को सारी चीजें जो है वो एक बार जो है उनके गो थ्रू हो जाती हैं सारी, और उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। अब ये पर्टिकुलर जो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि उसको कितना उससे फायदा उठा सकता है, कितना बेनिफिट ले सकता है। ये कोई उसके हाथ में नहीं देगा, उसको खुद उसको क्रिएट करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट, अगर जो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने 1-2 बार पहले भी रिपीट किया है, अगर जो कोई स्टूडेंट का बैकग्राउंड गारमेंट से नहीं है और वो एटीटीसी के प्लेटफॉर्म पर आ गया है, तब उसको मार्केट में जितने भी एक्सपोर्ट हाउस हैं उसमें से ये मान के चलो आपको 50% या 40% लिंक मिल जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लेटफॉर्म मिलने के बाद में लिंक को कैप्चर करना, ये बहुत जरूरी है। थैंक तो यू ये सो दोनों मच। चीजें जो है वो एटीडीसी से मिलती हैं। थैंक यू सो मच शगीर जी। अगर मैं पूछना चाहूँ कि आगे आप देखते हैं कि क्या फ्यूचर है स्किल बेस्ड एजुकेशन का इंडिया फैशन या फैशन अपैरल इंडस्ट्री में, अगर हम कहें कि ये स्किल एजुकेशन रियली हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए इन फ्यूचर? Am I audible? Yes, ma'am. Please. हाँ जी सर, बताएं। Ma'am, what was the question basically? थोड़ा नेट का इशू था मैम. What was the question? हेलो। Ma'am, am I audible? यस यस यस। Ma'am, what was the question basically? What was the question? क्वेश्चन बेसिकली ये था कि हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ स्किल बेस्ड एजुकेशन शेपिंग द इंडियन फैशन एंड अपैरल इंडस्ट्री? Okay. मैम, एज वी ऑल नो कि इंडस्ट्री बहुत तेजी से स्पीड अप कर रही है Am एंड वी I आर वर्किंग ऑन. एम आई ऑडिबल? यस यस। मैम, एज वी ऑल स्किल बेस्ड मतलब बेसिकली इंडस्ट्री सिस्टम एज वेल, राइट, मांड हो चुकी है कि पहले चल जाया करता था कि करते थे, बट एज ऑफ नाउ वो पैरामीटर्स, वो स्लैब्स धीरे धीरे सब खत्म होते चले जा रहे हैं. और स्किल बेस्ड की अगर हम बात करें, बायर्स और क्लाइंट्स अब सब लोग एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन की सब डिमांड कर रहे हैं, राइट. एंड स्किल बेस्ड ट्रेनिंग से हमको मैम मल्टी स्किल वर्कफोर्स मिलती है, जो कि एटीडीसी बहुत अच्छा काम इसके अंदर कर रही है, जो कि एक बेसिकली क्वालिटी, मशीन प्लानिंग, इन सब चीज की समझ ऑलरेडी उस बच्चे के अंदर पैदा कर देती है. तो अगर यही शिफ्ट अगर इंडिया को एक लो कॉस्ट वेंडर से वैल्यू हाइडेड पार्टनर्स के रूप में जरूर कन्वर्ट कर सकती हैं. तो इसके साथ साथ मैं मैम ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर कोई भी स्टूडेंट एटीटीसी को ज्वाइन कर रहा है तो डू नॉट रिलाई ओनली ऑन द एटीटीसी. एटीटीसी के साथ साथ आज की डेट में जिस स्किल्स की डिमांड है मार्केट के अंदर, लाइक एआई, चैट जीपीटी, पावर पॉइंट, राइट, कम्युनिकेशन, पीडीएफ, ऑल दिस आर द दैट स्किल्स कि जो हर बायर, हर क्लाइंट डिमांड करता है, और हर आदमी को सब चीजें फटाफट चाहिए. तो फटाफट चीजों के लिए फटाफट चीजें सीखनी भी पड़ेंगी लोगों को. तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, अगर एटीडीसी, तो आपको एक बेंचमार्क मिल गया कि आप इंडस्ट्री के अंदर घुस जरूर गए, लेकिन घुसने के बाद अपने आप को टॉप नॉच ऑथोरिटी में कैसे लेकर के जाना है, उसके लिए तो आपको स्किल्स डेवलप करनी ही करनी पड़ेगी. केवल हार्ड वर्क से तो आप पहुंचने वाले नहीं. स्किल्स अगर आपके पास हैं तो आप अच्छे खासे लोगों को भी आप क्रॉस करके आगे निकल सकते हैं. सो मैं तो मैम यही बोलना चाहूंगा. थैंक यू. थैंक यू सो मच रोहित जी। अभी नीरा मैम ने ज्वाइन कर लिया है। आई होप नीरा मैम, आई एम ऑडिबल टू यू। नाउ आई विल बी आस्किंग सम फ्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू एचआर। एचआर से रिलेटेड मैं कुछ पूछना चाहूंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स का ये भी होता है कि हम जब ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले हम एचआर पर्सपेक्टिव से जानना चाहते हैं, तो उनसे भी व्यू करना चाहेंगे। मैम, मैं ऑडिबल हूँ? नीरा मैम, आई एम ऑडिबल?
मैम आप थोड़ा वीडियो ऑन कर लेंगे? Yeah, it's on. Hi, Neetu Neetu. मैम से बोलो। Hi, everybody here. Yes. Yeah, I थैंक can यू hear. सो मच मैम। Yeah. ओके मैम, जैसे कि एचआर पर्सपेक्टिव से मैं जानना चाहूंगी कि from a check, what specific skills, attitudes, or competency do you look for in fresh recruitment from a fashion or an apparel institute like ATTC? And how well do you think such training bridges the gap between education and industry needs? हाँ, नीतू जी, इसमें मैं एक चीज यहाँ बोलूंगी एंड रोहित विदुरी जी, है ना, जी वट मैम। एवर, या जो भी मेरे ख्याल जी। से इन्होंने जितना कुछ भी बोला, मेरे को नहीं लगता कि मेरे पास कुछ बोलने के लिए इसके अलावा कुछ बचा। ही वेरी वेल सेड कि भाई टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज तो जरूरी है ही है, बट उसके अलावा जो आजकल जो एआई, चैट जीपीटी और वर्ल्ड मार्केट, ये स्टडीज भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम एज अ प्रोफेशनल जब हम देखते हैं कि कोई भी न्यू रिक्रूट है, तो उसमें थैंक यू सो ज्यादा मच। टेक्निकल उससे यस। एक्सपेक्टेशंस होती है हमारी बेसिकली उनसे एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है, जो उनकी बेसिक नॉलेज वो लेकर आ रहे हैं, चाहे वो उनके फैब्रिक से, ट्रिम से हो, या पैटर्न मेकिंग हो, या उनके अंडरस्टैंडिंग अपने डिजाइन वगैरह से, लेकिन उनके प्रोडक्शन प्रोसेसेस, इन सब चीज को लेकर भी उनके अंदर थोड़ा सा बहुत थोड़ा नो हाउ हो जाए। बाकी तो फिर इंडस्ट्री में आने के बाद तो फिर उनका वो हैंड होल्डिंग हो जाती है वहां पर। तो बेसिकली हम यही देखते हैं कि उनका टाइम मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग, किस तरह से एटीट्यूड है, क्या बिहेवियर है, लर्निंग एबिलिटी क्या है, या कितना वो बच्चा कंफर्ट है, या कितना वो सीखने के लिए वो इच्छुक है आगे बढ़ने के लिए, तो उसके अंदर वो फायर है या नहीं है। तो बस बेसिकली तो देखो एचआर यही चीज है, फायर है थैंक यू उसके मैम। अंदर, तो वो हम आगे निकाल के तो ले ही जाते हैं बच्चों को। करेक्ट। तो इसमें अच्छा एक मैम, चीज मेरा भी दूसरा समझनी क्वेश्चन होगी, ये वन है। मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, कि यहाँ पे बच्चों को एक चीज ये भी समझनी होगी कि टाइम मैनेजमेंट जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम ऑर्डर टेकिंग टू डिलीवरी। तो जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है कि ये चीजें उनके अंदर एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, कि ठीक है विद टाइम उनके स्किल्स डेवलप हो ही जाएंगे, बट ये जो इनबॉर्न स्किल्स हैं, तो उस पर उनको काम करना पड़ेगा कि हमें अपने इनबॉर्न स्किल्स के ऊपर काम करें, हाउ टू डेवलप योर ओन पर्सनैलिटी, अपने आप को खुद कैसे मेरा ट्रांसफॉर्म दूसरा करना है। क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड ही था हाँ मैम। जी। हाँ, मेरा दूसरा क्वेश्चन यही था कि सॉफ्ट स्किल्स जरूरी हैं, जैसे कि अगर हम कहें कि बच्चे का एक पर्सनालिटी होना, ग्रूमिंग और टीम वर्क, तो ये आपके रिक्रूटमेंट में इफेक्ट करता है कि आप ये चीजें देखते हैं जब आप रिक्रूट करते हैं बिल्कुल कैंडिडेट को? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार को टेक्निकल स्किल को हम साइडलाइन कर देंगे, बट ये जो तीनों आपने एट्रीब्यूट्स कहे हैं, जो भी आपने बोले हैं, ये बिल्कुल इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी लैंग्वेज, उनका बोलने का तरीका, उनका सॉफ्ट स्किल, बिकॉज दे हैव टू प्रेजेंट, दे हैव टू, बिकॉज क्योंकि हाँ, दे हैव टू प्रेजेंट देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ बायर्स, अपनी टीम के साथ काम करना है। तो सॉफ्ट स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो कितना अपने आप को, अपने आइडियाज को कैसे वो आगे प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो चीज उनके अंदर होनी बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच मैम। मेरा लास्ट आपसे एज एन एचआर पर्सपेक्टिव लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि जो इंटर्नशिप्स हैं या ऑन जॉब ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, क्या हायरिंग में इन्फ्लुएंस करती हैं? ऐसा कोई एग्जांपल आपको दे सकते हैं कि एक बच्चा बिना ट्रेनिंग के आया हुआ है, कोर्स किया है लेकिन कहीं ट्रेनिंग नहीं करी है, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो ट्रेनिंग करके आए, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जरूरी है कि बच्चा ट्रेनिंग करके आए तो वो ज्यादा अच्छा हायरिंग में आपके लिए इजी हो जाता है या अच्छा परफॉर्मेंस देता है? ऐसा आपका मैं व्यू जानना चाहूंगी मैम इस पर। बिल्कुल, उसका ऑब्वियसली ग्राफ ऊपर ही है, ऑब्वियसली, क्योंकि कोई भी आज की डेट में जो आपकी जो टाइम मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको लेके बात करी, तो हर आदमी के पास इतना रिस्ट्रिक्टेड टाइम लाइन है कि उस समय अब वो वाला टाइम निकल गया नीतू जी, कि जब हम कहेंगे कि अब ये ट्रेनिंग स्कूल है। अब हर कोई कहता है कि यार हमारे पास एटलीस्ट उसके एक बेसिक नॉलेज हो, उसको हम ऐड ऑन कर सकते हैं, बट एकदम रॉ को लेके काम करना इज वेरी डिफिकल्ट। और अगर आप सोचो कि रॉ को लेके आप किसी टीम में डाल दोगे, तो वो बच्चा खुद ही सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी चीजें जो, अगर वो डे टू डे में जो आपके यहाँ से लर्निंग लेके आया है, तो इट विल बी मोर इजियर फॉर दैट चाइल्ड टू कैच द थिंग्स, कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, बट एग्जैक्टली दे वांट। तो वो सारी चीजें वो तभी कैच कर पाएगा जब उसको उसको एबीसी लेटर तभी फॉर्म होगा, सेंटेंस तभी फॉर्म होगा, वर्ड तभी फॉर्म होगा, या सेंटेंस तभी फॉर्म होगा जो उसको लेटर्स आते होंगे। तो लेटर्स बहुत जरूरी हैं। सो इट इज लाइक अ स्किल, जो आप बता रहे हैं कि बेसिक नॉलेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। मैं एक जर्नल आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी
कि क्या आप एटीडीसी के जो आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं, तो क्या जो स्टूडेंट्स अभी करना चाहते हैं कोर्स, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे एटीडीसी के कोर्सेज के लिए? जो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो करना चाहते हैं पर उनको शायद डाउट है कि हम कुछ करें या नहीं करें, कोर्सेज करने चाहिए, तो आपका क्या मैसेज है ये एक जनरल ऑडियंस के लिए? This question is for me. यस मैम, No. फॉर यू। Acha, you asking me? यस Can you please? I thought you are putting this question to Mr. Rohit. So can you please explain? No, no, I one was more time? asking you that do you recommend the ATDC courses to the aspiring students? आप recommend करेंगे? Obviously, definitely. Even हम लोग यहाँ पे अपने कई कैंपेन्स में हमने आप लोगों को इन्वॉल्व भी किया टीडीसी को कि, और अगर वो अच्छे से हमारे जो हमारे स्टाफ हैं, जो भी लोग अपने बच्चों को आगे लेकर जाना चाहते हैं, अगर टेक्निकली लेकर जाना चाहते हैं, तो एटीडीसी से बेटर मैं नहीं समझूंगी, क्योंकि पॉकेट फ्रेंडली भी है। अगर जैसे हम बात करें पर्ल और इन सब की बात कर रहे थे एकेडमी वगैरह की, तो ठीक है, वो एक लेवल पे वहाँ पे एक सिलेक्शन का भी प्रोसीजर और जो भी है, और वहाँ तक पहुँचना भी सब बच्चों के पहुँच से बाहर नहीं है। लेकिन जिनकी जो ड्रीम्स हैं, जो अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं, तो आई थिंक एटीडीसी इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे जितनी प्रोफेशनली आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और मैंने ट्रांसफॉर्मेशन एटीडीसी का बहुत ज़्यादा देखा है इन लास्ट फ्यू ईयर्स की। पूरा कंप्लीट जो आपका थॉट प्रोसेस है प्रोफेशनलिज्म को लेकर, और काम के जिस तरीके से आप लोग टेक्निकली बच्चों को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं चीज़ों के अंदर, तो आई थिंक वो मतलब इट इज़ नो लेस देन एनी अदर रिनाउंड इंस्टीट्यूट, जो अगर हम बात करते हैं तो अभी हम आपके बच्चों का भी देख रहे हैं कि जो आपके बच्चों का सिलेक्शन भी है, तो वो भी बहुत अच्छा, मतलब जो क्रीम निकल के आ रही है अब की बार, जो क्लासेस भी थी 4 साल से। और कौन फ्री है? सबकी क्लासेस भी है। तो ऑब्वियसली हम रिकमेंड Thank you. करते हैं, और अपने स्टाफ वर्कर्स सबको रिकमेंड करते हैं कि भाई, और उसके लिए हमने कई बार कैंपेनिंग्स वगैरह भी आप लोगों से करवाई हैं कि आप और भी अच्छे तरह से, हम तो बोलते ही हैं, उनको लगता है कि हम लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन अगर मैं तो स्पेशली भी कई बार मेरे पास आते हैं कि नहीं मैम मैम, हम क्या बेसिकली कराएं। हमारा रीजन ही यही है, हाँ, ये रीजन ही यही है कि पैनलिस्ट को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कई बार ऐसा होता है कि ज्वाइन कर लेते हैं, फिर भी उनको नहीं पता होता है कि सही चॉइस किया है कि नहीं उन्होंने। तो इस तरह के आप लोगों के व्यूज से, पर्सपेक्टिव से जब उनको सुनता है, वो समझते हैं कि राइट उन्होंने सही करियर को चूज किया है, तो ये हमारे लिए भी एक सेटिस्फेक्शन, और एक स्टूडेंट के लिए भी बहुत बड़ा एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है। नीतू जी, एक चीज और बताऊं कि एटीडीसी इज नॉट अ न्यू नेम फॉर द इंडस्ट्री स्टाफ एंड पीपल, क्योंकि अब हम खुद ही इंडस्ट्री, वहाँ से आपके यहाँ से इतनी हायरिंग होती है, तो जो पेरेंट्स हैं वो खुद भी उन लोगों से पूछते हैं कि आप कैसे यहाँ तक पहुँचे और कैसे इस लेवल तक पहुँचे। तो एक ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में जो आपकी हायरिंग हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली इसीलिए हो रही है कि वी आर गेटिंग गुड स्टूडेंट्स फ्रॉम एटीडीसी, तो वही सारी चीज़ें, ये एक अपने आप में एक मैसेज ट्रैवल कर रहा है। इसमें मुझे नहीं लग रहा कि हमें आप या हम ठीक है ऐड ऑन कर सकते हैं, पर इंडस्ट्री में जिस स्पीड से इनकी हायरिंग हो रही है, वो अपने आप में एक वो है। मैम मैं इसमें ना नीरा मैम के इस पे ना मैम एक चीज और ऐड ऑन करना चाहता हूँ, इफ आई हैव द टाइम। ओके मैम मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ, एम आई ऑडिबल? या यस सर प्लीज। मैम कई बार क्या होता है ना, जैसे एटीडीसी से कुछ लोग आते हैं, कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं, तो हमसे बोलते हैं कि सर मैं 5 साल में क्या मैं इतने में पहुंच जाऊंगा, मैं इतना पहुंच जाऊंगा। दे आर जस्ट आस्किंग फॉर द अमाउंट ओनली, दे आर चेजिंग द नंबर्स, सैलरी 20,000 30,000 40,000 50,000। मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ, बेटा फर्स्ट लर्न देन रिमूव एल, इट बिकम अर्न। पहले लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग तो अपने आप आ जाने वाली है, पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2, जब कुछ लोग आते हैं कि सर मैं ना कोशिश करूंगा, मैंने कहा क्यों कोशिश क्यों करेगा? कहते सर मेरे फादर कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं कहता हूं कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, करने वाले की हार नहीं होती। दो चीजें मैम, कोशिश करने वाला सिर्फ कोशिश करता रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने माइंड को सिग्नल दे दिया जी, जी। कि भाई अगर मैं फेल भी हो गया ना कोई बात नहीं, मेरा माइंड ना मेरे को प्यार से पुचकार के बोलेगा भाई कोई बात नहीं, तूने कोशिश तो करी, तो वो उसको ना मतलब इमोशनल उसमें बह जाएगा। बट अगर हम अपने माइंड को स्ट्रेट फॉरवर्ड विजन दे दे, भाई करना है, कोशिश नहीं करनी, करना है तो करना है, मुझे 5 साल के अंदर 5 लाख का या 1 लाख का या 50,000 का या मैनेजर पोजीशन मुझे लेनी ही लेनी है। उसके लिए मुझे किस लेवल की नॉलेज लेनी पड़ेगी, उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए मुझे किस लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा, दैट मेक्स द मोर सेंस। क्योंकि मैं हर बार मैं अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर भी मैं यही कहता हूं दैट वी आर एन एवरेज ऑफ द 5 पीपल वी स्पेंड द टाइम मोस्ट विद। आपको देखना पड़ेगा आप किसके साथ अपना समय बिता रहे हो, जैसे कि लोगों के साथ समय बिताएंगे वैसे आप बनते चले जाएंगे।
सगीर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? जी मैम, एक थोड़ा सा मैंने नोटिस किया है, जैसे स्टूडेंट्स से मैं कभी बात करता हूँ एटीटीसी के बिगनिंग में या फिर मिडिल ऑफ एंड में, तब ये मेरा क्वेश्चन उनसे अक्सर रहता है कि कौन सा डिपार्टमेंट तुम चूज करोगे। तो बेसिकली ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट जो है इस वाले क्वेश्चन को बहुत कंफ्यूजन की तरह देखते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में कि कौन सा डिपार्टमेंट जाए। क्योंकि अगर जो उनसे फिर पर्टिकुलर एक एक पर्सन से पूछो तो वो बताएंगे कि मैं मोस्टली 90% जो है वो लोग मर्चेंडाइजिंग के लिए जो है वो सोचते हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि इन एटीडीसी के कोर्स के मिडिल में ही या फिर एंड ऑफ द कोर्स ये उनको एक उनकी स्किल को जो है वो आइडेंटिफाई करने के बाद उनको सजेस्ट किया जाए क्या आपके लिए बेस्ट ऑप्शन इस डिपार्टमेंट से एंट्री रहेगा। एक्चुअल में एक डिपार्टमेंट से आजकल वो तो जमाना गया आपसे 20 साल 22 साल पहले के एक डिपार्टमेंट से सारा कुछ हो जाएगा। मल्टी स्किल होना जरूरी है, मल्टी डिपार्टमेंट। फिर भी मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट जो है पर्टिकुलर उसकी स्किल आइडेंटिफाई करने के बाद उसको एक बार सजेस्ट किया जाए कि आपके लिए ये वाले डिपार्टमेंट ज़्यादा सुटेबल है, मर्चेंडाइजिंग, प्रोडक्शन, क्वालिटी, आई, जो भी बेटर हो। तो ये आप उसमें एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हो स्टूडेंट्स के लिए। नहीं, ये रियली आपने बिल्कुल फैक्ट कहा सर, कि स्टूडेंट्स या तो किसी से सुन के आते हैं या अपना एक माइंड परसेप्ट कर लेते हैं कि हमें इस डिपार्टमेंट में जाना है। पर जैसा कि नीरा मैम ने भी कहा है और सगीर सर ने या रोहित सर, अब जैसे पंकज सर से अब ये मनोज जी सर भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे। तो अब जैसा मैं भी जानती हूँ कि इंडस्ट्री में बहुत सब चीजें सबकी मीटिंग्स हैं, तो आई थिंक सो नीरा मैम आपको थोड़ा सा किसी उसके लिए जाना है मीटिंग के लिए। या, तो मैम मैं अगर आप बीच में चाहे तो आप लीव कर सकते हो। थैंक यू सो मच, Thank आपने you. ज्वाइन किया और आज हमारे स्टूडेंट्स को ये इतना ओवरव्यू पर्सपेक्टिव दिया। रियली इट इज रियली हेल्पफुल फॉर आवर स्टूडेंट्स एंड द एटीटीसी टू learn more about it, and we'll definitely call you again and again for this support of yours. Thank My you, Neera ma'am. pleasure. My pleasure, Neetu. Thanks for inviting me. Thank you so much. Bye. Thank you. Now, can I have the marketing perspective? Manoj sir, I hope you are online. Manoj sir, am I audible to you? Manoj sir? Mr. Manoj has not joined. Mr. Manoj sir hasn't joined? Actually, he No, messaged he that he hasn't has joined. joined. I thought he joined हो गए हैं। चलिए, तो फिर अगर we can have the word with Sagir sir and Rohit sir also, because they also have some meetings which is tied up with the industry. So आप क्या एक अपना सगीर सर आप एडवाइस देना चाहेंगे जो कि यूथ हैं, जो चाहते हैं कि हम फैशन या टेक्सटाइल या अपैरल में अपना करियर बनाएं, तो उनके लिए आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे सर, सगीर सर? बेसिकली मैम एडवाइस उनको सबसे पहले ये है कि जो मैंने अभी बोला था, अपने स्किल को एक बार आइडेंटिफाई करें। किसी की बात या अपना पहले जो मन बना रखा है कि यहीं से शुरू करना है, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप इसी को लें। और दूसरी चीज, जब गारमेंट्स इंडस्ट्रीज में एंट्री कर ली उन्होंने, तो फिर अपना गोल तो खैर सभी को बनाना है, लेकिन यह है कि आप मल्टी स्किल होना जो है वो बहुत जरूरी है। आज किसी भी एक, मान लिया पैटर्न मेकिंग है, पैटर्न मेकिंग से ही काम नहीं चलने वाला, और भी चीजें हैं, प्लानिंग भी उसको करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन है तो प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन है तो आई भी करना पड़ेगा, आई है तो उसको क्वालिटी भी देखनी पड़ेगी। मतलब ऐसा ना हो कि ये डिपार्टमेंट तो मुझे नहीं आता, उसको रिक्वायरमेंट हो या ना हो, उसको अपने लिए मल्टी स्किल बनाना ही पड़ेगा। ये टाइम ही ऐसा आ गया है। जी मैम। थैंक यू सो मच सगीर। रोहित, जैसे आप भी एटीटीसी के एलुमनाई हैं और आपने भी कोर्स किया हुआ है, तो मैं एक आपसे मार्केटिंग और मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड कुछ पूछना चाहूंगी कि जनरली जब स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं तो उनको लगता है, तो क्या आपको लगता है कि जब स्टूडेंट्स मर्चेंडाइजिंग का रोल
ज्वाइन करते हैं तो उनको बायर्स का नॉलेज, इंटरेक्शन या उनमें वो टैलेंट होना चाहिए, उनको ट्रेंड अवेयरनेस की नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए? मैम बिल्कुल होनी चाहिए। अगर वो बेसिकली जैसा आपने बताया कि वो मर्चेंडाइजिंग उन्होंने ज्वाइन किया है, तो मर्चेंडाइजिंग के हिसाब से उनको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ टू कम्युनिकेट विद क्लाइंट्स, विद बायर्स। और कई बार मैम ऐसा भी देखने को मिलता है कि वो करना तो चाहते हैं लेकिन उनको वो बेसिकली वो सपोर्ट नहीं मिल पाता इन केस मे बी, कि वो इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं या उनकी कम्युनिकेशन इतनी शार्प नहीं होती कि सो दैट दे कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद द बायर्स एंड ऑल। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मैं ये रिकमेंड करूंगा स्टूडेंट्स को कि एटीडीसी ने आपको मौका दे जरूर दिया इंडस्ट्री के अंदर आने का, बट यू हैव टू शार्पन योर स्किल्स बाय योर ओन। आपको अपने आप ही अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। नए नए कोर्सेज आ रहे हैं मैम मार्केट के अंदर, जो आपकी ब्रांडिंग, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी एटिकेट्स, ईमेल मार्केटिंग, इन सब चीजों को आपको पॉलिश करती है। जो मैं कहता हूँ, केवल डू नॉट रिलाई ओनली ऑन द एटीडीसी, only ATDC. After ATDC, you should also invest some more amount of money on your brain as well. अपने बुद्धि पे पैसा लगाना पड़ेगा वर्कर्स को या मेरे स्टूडेंट्स को, जितने भी लोग आ रहे हैं, तभी वो जब अपने माइंड के ऊपर पैसा खर्च करेंगे, नई नई स्किल सीखेंगे, तो उनको एक्सपोजर बहुत सारे मिलते चले जाएंगे। जैसे जैसे अभी सगीर सर ने बहुत अच्छी बात कही कि वो अगर आई में है तो उसको प्रोडक्शन का भी देखना पड़ेगा, प्रोडक्शन है तो क्वालिटी भी देखनी पड़ेगी साथ साथ। ऐसा नहीं कि मैंने अपना काम कर लिया भाड़ में जाए दुनियादारी, नहीं, आई के साथ साथ उसको प्रोडक्शन भी देखना है, क्वालिटी भी देखनी है। अगर मैं अपनी आई की बात करूं तो दैट डजंट मीन कि मैंने सिर्फ अपने टाइम स्टडी कर ली, वो भी बना ली, दैट्स इट। आई एम द कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल दैट व्हाई द प्रोडक्शन इज नॉट कमिंग। आई एम ऑल्सो द रेस्पॉन्सिबल व्हाई द माई प्रोडक्ट इज नॉट बिकमिंग लाइक अ राइट फर्स्ट टाइम। I am also responsible that my worker is why he's on leave. I am also responsible why the salary is not coming on time. I am also responsible that the quality defect is increasing. मैं जब तक मैं पहल करूंगा, अगर if I will take the initiative, the complete management will take the initiative with me. और मैनेजमेंट को नजर आ जाता है यार कौन बंदा पहल कर रहा है, कौन बंदा इनिशिएटिव ले रहा है, और जो बंदा अपने मैनेजमेंट के विजन को अपना विजन समझे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि भाई मैं तो आई डिपार्टमेंट में, मैं क्वालिटी में नहीं घुस सकता, आपको रोकने वाला कोई नहीं इंडस्ट्री के अंदर। अगर आपके आइडियाज के अंदर दम है और आपका विजन क्लियर है कि भाई इस बंदे की गलती के चक्कर में मेरा प्रोडक्ट खराब हो रहा है, तो यू हैव फुली राइट टू स्पीक टू एनीबडी एल्स। इवन आप फैक्ट्री के सीईओ से भी बात कर सकते हो कि मेरा प्रोडक्ट खराब हो रहा है, और अगर इस प्रोडक्ट को खराब होते होते अगर मैं कोई आइडिया दे रहा हूँ जिससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो आपके आइडियाज की सुनवाई जरूर होती है मैम। तो ये सब चीजें हैं, आपको अपने आइडियाज पे, अपने माइंडसेट के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। और उसके लिए मैम इंडस्ट्री के अंदर दोस्त भी हैं जो उनके साथ आप मतलब ट्रेनिंग भी ले सकते हो, उनकी 1-to-1 मेंटरशिप भी ले सकते हो अगर आपको लग रहा है। तो ये सब चीज करना चाहिए अगर इफ दे वांट टू हैव। यस। तो जैसा आपने भी बताया, सर मैं आप शगीर सर आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसा ये हमारा इनिशिएटिव हमने अभी स्टार्ट किया है कि हम इंडस्ट्री इंटरेक्शंस कर रहे हैं, जो आज हमारा सेशन है वे लर्निंग मीट्स इंडस्ट्री, तो आपको क्या लगता है क्या ये इंडस्ट्री और स्टूडेंट दोनों को बेनिफिट कर सकता है? सगीर सर। नहीं मैम, करेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बेनिफिट्स तो रहेगा ही है। तो आपके हिसाब से ये जैसा हमारा जो है, हम बेसिकली चाह रहे हैं कि जो लर्निंग कर रहे हैं, जो जैसा रोहित जी ने भी कहा कि लर्निंग में एल हटा के हम अर्निंग की तरफ बात करें, तो वो अर्निंग तभी हो सकती है जब हम इंडस्ट्री के हिसाब से उस कोर्स को अपने आप को वर्कआउट करें उसके लिए। तो इसी के साथ में मुझे लगता है कि शायद मनोज सर का कुछ ज्वाइनिंग का इशू है, तो हम मार्केटिंग का हमें बाकी सब रोहित जी ने और शगीर सर ने बता ही दिया है। तो we again wait for a minute, अगर in case if he joins then we can give the audience। इसके बीच में मैं चाहूंगी कि अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन, तो दोनों एक्सपर्टीज हमारे यहाँ पर है, पर्सपेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग के भी हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट चाहते हैं कि हाँ हम कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो प्लीज अपना एक हैंड रेज करिए ताकि हेड ऑफिस से आपको अनम्यूट कर दिया जाए। अगर आप में से कोई कुछ क्वेश्चन करना चाहता है, किसी के में डाउट है कि मैम हमें कुछ क्वेश्चन करना है, anybody from the audience, to student audience who wants to ask any question can raise their hand and request for unmute. Anyone from the audience? मैम मेरा एक क्वेश्चन है रोहित सर पे।
कि जो भी स्टूडेंट हाँ जी। हमने एसडीसी में देखे हैं, उनका एक ही क्वेश्चन रहता है कि मैं मर्चेंडाइजिंग में ही जाऊंगा, मर्चेंडाइजिंग में। ऐसा क्यों है कि सारे स्टूडेंट मर्चेंडाइजिंग में ही जाना चाहते हैं? लाइक प्रोडक्शन या आई क्वालिटी, इसमें कोई जाना क्यों नहीं चाहता? सी मैं इसमें एक चीज बताता हूँ, क्योंकि मर्चेंडाइजिंग का ना सबने एक फैंटासी दुनिया समझा हुआ है सबने, कि मर्चेंडाइजिंग का मतलब बायर्स होंगे, ऐसा होगा, ख्याली दुनिया होगी। लेकिन मर्चेंडाइजिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है दोस्त कि आप आए और आपको लग्जरीज लाइफ मिलने वाली है। मर्चेंडाइजिंग के अंदर इवन आपको सबसे ज्यादा पंक्चुअल होने की जरूरत है, सबसे ज्यादा आपको बेटर कम्युनिकेटर होना बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटी आपको होनी बहुत जरूरी है, अगर आपको एक टॉप नॉच पर्सनैलिटी बनना है, राइट। बट अगर आप मेरी राय लेना चाहते हैं, अगर आप एडीडीसी से निकल करके आते हैं, तो मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता कि भाई आप आई में चले जाओ, प्रोडक्शन में चले जाओ, क्वालिटी में चले जाओ, मर्चेंडाइजिंग में चले जाओ। मैं सबको यही रिकमेंड करता हूं कि कम से कम आप 1 से 2 महीने की आप इंटर्नशिप की ट्रेनिंग जरूर कीजिए। 5-5 दिन, एक हफ्ता आप सारे डिपार्टमेंट में लगाइए। लगाने के बाद आप उसकी डेप्थ की ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग लेने के बाद उसके नोट्स बनाइए, जिस नोट्स को मैं बोलता हूँ स्वॉट। क्या बोलता हूँ? स्वॉट। रिपीट करो मेरे साथ। तो SWOT, 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 S stand for the strength, weakness, opportunity and threats। हर डिपार्टमेंट में जब आप जाएंगे तो एक एक हफ्ते की आप रिपोर्ट सबमिट कराते हो मेरे को, कि सपोज आप मर्चेंडाइजिंग में गए तो मर्चेंडाइजिंग में आपने क्या स्ट्रेंथ देखी, क्या वीकनेस नजर आई, क्या अपॉर्चुनिटी, क्या थ्रेट्स। सेम फॉर्मूला आप सारे डिपार्टमेंट में यूज करते हो। फिर उसके बाद एक 1-to-1 मैं अपने स्टूडेंट के साथ मैं सेशंस रखता हूँ, कि मैं हर डिपार्टमेंट से उससे सवाल जवाब करता हूँ। फिर उसी का पॉइंट आउट निकाल करके निकल के आ जाता है कि आप किस डिपार्टमेंट के लिए परफेक्ट बनते बने हो। हर आदमी मर्चेंडाइजर नहीं बन सकता, हर आदमी प्रोडक्शन मैनेजर नहीं बन सकता, हर आदमी सीईओ नहीं बन सकता, राइट। वो तो हमको एज अ मेंटोर जो इस इंडस्ट्री के अंदर बैठा है उसको देखना पड़ेगा कि आपके अंदर स्पार्क किस लेवल का है। एक बच्चा है वो कम्युनिकेशन बहुत दबाके की करता है, राइट, तो डेफिनेटली वो मर्चेंडाइजिंग में या डिजाइनिंग में या फिर उस लेवल पे जाना चाहिए, क्वालिटी में जाना चाहिए, जो क्लाइंट्स के साथ डायरेक्टली डील कर सकता हो। कुछ बच्चे ऐसे मिलते हैं कि बड़ी शाय पर्सनैलिटी होती है, लेकिन वो टेक्निकल फील्ड में या हार्ड वर्किंग बहुत अच्छा होता है, तो उसको हम अलाउ करते हैं, चलो यार प्रोडक्शन में आने के लिए। कुछ लोग होते हैं उसके मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन बड़ी अच्छी है, वो शार्प माइंडेड है, उसको मैं आई में इन्वाइट कर लेता हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि आपको आपकी पर्सनैलिटी को देखते हुए कि आप कौन सी नॉच पर्सनैलिटी आप बनेंगे। और इंडस्ट्री के अंदर 4 कलर की पर्सनैलिटी होती है, 4 कलर की, रेड पर्सनैलिटी, येलो पर्सनैलिटी, ब्लू पर्सनैलिटी एंड ग्रीन पर्सनैलिटी। रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन। अब आप बोलोगे ये कौन सी पर्सनैलिटी होती है? राइट, रेड, येलो, ब्लू एंड ग्रीन। वो फिर कभी हम मौका, नीतू मैम अगर दोबारा मुझे मौका देगी फिर कभी हम ट्रेनिंग में समझाएंगे आप लोगों को। अगर मैं करूंगा तो ये सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, राइट। तो किसी दिन फील्ड से तसल्ली में समझाएंगे 4 प्रकार की पर्सनैलिटी कौन सी होती है और सबसे खतरनाक बहुत सी पर्सनैलिटी कौन कंपनी होती में है। मैंने देखा है ना, बहुत सी कंपनी में देखा है कि मैंने प्रोडक्शन में देखा है कि टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल जीरो है, और फिर भी वही पुराने टेक्निकल दिमाग लगा के काम करवा रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है और कॉस्ट ज़्यादा आ रही, फिर भी उसी तरीके से काम, मतलब अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते ही नहीं कि नया तरीका, उन्हें नया आइडिया लाए। बहुत सी कंपनी देख रहे हैं। बहुत कंपनी देखी है आपने? चलिए, चलिए, थैंक यू सो मच। मनोज सर ने ज्वाइन कर लिया है, तो मैं सर से थोड़ा सा जानना चाहूंगी। वेलकम सर। सर मैं ऑडिबल हूँ आपको? मनोज सर, आई एम ऑडिबल? Yes, 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 you're audible. सर वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। यहाँ हम स्टूडेंट्स के साथ में एक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव सेक्शन रख रहे हैं, जहाँ हम हर एक डिपार्टमेंट के हिसाब से जानना चाहेंगे। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आजकल जैसे हमारा फास्ट चेंजिंग फैशन मार्केट है, तो एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद बायर्स एंड अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर नीड्स आर वाइटल। आपकी आज की डेट में बहुत जरूरी है कि हम कंज्यूमर नीड्स को भी करें। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज इंडस्ट्री रिलेटेड नॉलेज, product development, trend awareness, and fresh talent when they enter buyers interaction and merchandising roles. So how do you, what do you want to say about all this? Sorry, can you repeat the question? Sir, I just want to say that how important is industry ready knowledge for the fresh talent when they enter buyer interaction and merchandising roles? Oh, you were asking about regarding the communication between merchant and buyer, right? Yes, sir. Communication is the very, very important part. This is the first part.
through communications only we start to generate the everything to get the business, to approach to the buyer. So this is the very very important, and this is the merchandising का सबसे बड़ा हथियार ही होता है कम्युनिकेशन, चाहे वो मेल पे करो चाहे फोन पे करो आप। और आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बन जाते हैं बायर के सप्लायर के, इमीडिएट 24/7 कभी भी कुछ डाल दो। तो उसके बिना तो हमारी इंडस्ट्री का कोई भी इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती है। कम्युनिकेशन तो मस्ट है। कम्युनिकेशन के लिए एक स्किल का भी डेवलपमेंट होना जरूरी है, जैसे कि आप किस टाइप से मेल भेज रहे हो, आपकी मेलिंग या आपकी टॉकिंग कैसे अप्रोचेबल है, टू बी द अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव। एक होता है जैसे कि एक लाइन का वेग मेल डाल दिया, एक होता है कि जैसे डिटेल एक्सप्लेनेशन में एक ही बार में अगर किसी कस्टमर को आप किसी भी पॉइंट से रिलेटेड मेल डालते हो, वो भी एक इम्प्रेसिव होता है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Hello. Yes. So really it is nice to hear कि स्टूडेंट्स को किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए। तो मेरा आपसे दूसरा ये है कि कैन यू शेयर एन इंस्टेंस वेयर द स्किल ऑफ अ यंग प्रोफेशनल सच एज प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, ट्रेंड रिसर्च और बायर कम्युनिकेशन एडेड वैल्यू इन मार्केटिंग और बायर इंटरेक्शन। ऐसा कोई एग्जांपल, चाहे वो एटीडीसी का हो या ऐसा कोई आपके पास में ट्रेनिंग आया जिससे आपको लगा हो कि वाकई में प्रीवियस नॉलेजेस से उनको रियली हेल्प हुआ और उन्होंने बायर से अच्छा कम्युनिकेट किया। ऐसा कोई आपके पास कोई एग्जांपल हो? सर आपके पास तो रोज बहुत सारी ट्रेनिंग्स आते हैं, तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे इसमें? नहीं, इट्स ट्रू। हमारे पास तो हर तरफ से लोग आते हैं, चाहे वो हौज खास से हो चाहे एटीडीसी से हो। ठीक है, तो वी हैव अ लॉट ऑफ लाइक एक्सपीरियंस कि किस तरह से लड़के आज के या यंग जनरेशन आते हैं। बट वन थिंग इज देयर कि दो टाइप की मर्चेंडाइजिंग हमने देखी अपने लाइफ में। एक होता था जैसे कि ओल्ड जनरेशन, लाइक विदाउट स्टडी, विदाउट पढ़ाई, सीधे आए किसी के असिस्टेंट में ज्वाइन कर लिया और मर्चेंडाइजिंग शुरू कर दी। ठीक है, और आज के जनरेशन जो स्टडी करके आ रहे हैं, लाइक एटीडीसी से भी हमारी कंपनी में आज के डेट में बहुत बच्चे काम कर रहे हैं जो वहां से स्टडी करके आए थे। तो आज के जनरेशन और पहले के जनरेशन में फर्क ये है, इनको सिर्फ गाइड करने की जरूरत होती है, पहले हाथ पकड़ के सिखाना होता था। ठीक है, अब क्या है कि सिर्फ इशारा कर दो। दे आर वेरी फास्ट नाउडेज इन कम्युनिकेशंस एंड एवरीथिंग, नॉट ओनली इन कम्युनिकेशंस ओनली, इन द परफॉर्मेंस आल्सो। तो बहुत फर्क तो है, नो डाउट एट ऑल। और सर मेरा दूसरा ये आपसे है कि जैसे क्रिटिकल और क्रिएटिविटी बैलेंस जिसको हम कहते हैं, कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या वाइटल रोल प्ले करती है आपके हिसाब से? अगर हम मार्केटिंग या मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट में बात करें तो डज इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट और मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट? बिल्कुल वही मैं बता रहा था कि आपका, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, आपके एटीडीसी से मेरे यहाँ 2-3 लड़के हैं। एक करण है, करण मेरे यहाँ एक बहुत बड़ा ब्रांड है एनएसएल, नेक्स्ट करके ब्रांड है, नेक्स्ट यूके का। ही इज हैंडलिंग इंटायर प्रोडक्शन। और आज की डेट में उस लड़के का कम्युनिकेशन स्किल एंड वे ऑफ अप्रोच एंड हैंडलिंग एंड परफॉर्मेंस इज रियली इंप्रेसिव। वो 2 बार इंक्रीमेंट ले चुका है हमारी कंपनी में। कैन यू बिलीव दैट? एक और लड़की थी, प्रिया नाम था उसका। शी वाज आल्सो हियर, शी वाज आल्सो डूइंग गुड। हमें सिर्फ इशारे करने की जरूरत होती थी, बैठ के हाथ पकड़ के सिखाने की जरूरत नहीं होती आज के। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप अच्छे से अप्रोच करते हो कस्टमर को तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा होता है, आपके लिए अच्छा है, पर्सनल रिलेशनशिप भी बिल्ड होते हैं। तो कम्युनिकेशन मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये तो सबसे बड़ा बाइबल है। हम तो काम करते ही नहीं है, हम तो सिर्फ लैपटॉप पे बैठ के कम्युनिकेशन ही करते रहते। सर एक मेरा ये सवाल आपसे भी है, जो कि मेरा उसमें जर्नल उसमें था कि जैसे जिस तरह से हम आज की डेट में देख रहे हैं स्किल बेस्ड एजुकेशन के लिए, तो आपको क्या लगता है कि हमारे पैरेलल इंडस्ट्री या फैशन इंडस्ट्री में इसका स्कोप है आगे, स्किल बेस्ड एजुकेशन? लॉट सी, देखिए इनवॉल्व 2-3 चीजें ऐसी है ना जो कभी स्लो नहीं होने वाला है, कभी बंद भी नहीं होने वाला है। उसमें से कपड़ा डिपार्टमेंट जो है ना इंपॉर्टेंट, राइट? आज के डेट में आप एक दिन खाना खाए भी ना रह जाओगे, लेकिन कपड़ा बिना पहने हम तो रह ही नहीं सकते। न्यू नए जनरेशन आते रहते हैं, न्यू डिजाइन आते हैं, न्यू फैशन आते हैं। और अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड, आप आज के देखो पॉपुलेशन कहाँ से कहाँ चली गई, तो गारमेंट इंडस्ट्री तो कभी कुछ स्लो हो ही नहीं सकता है। देयर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। आज के डेट में आई डोंट नो आप लोग अवेयर हो कि नहीं, हमारी इंडस्ट्री में पैकेज पता है कितने से कहाँ चला गया है? करोड़ों साल का, करोड़ों से ऊपर। ये तो स्टूडेंट्स को सर आप बताइए, ये स्टूडेंट सुनना चाहते हैं एक्चुअली।
इसी एनसीआर में जितना बहुत मैं जरूरी है। लोगों को जानता हूँ इस एनसीआर में जिनकी महीने की पैकेज है 1.5 करोड़ रुपए, कैन यू बिलीव? तो देयर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। वो बोलते हैं ना कि स्काई जो अनलिमिटेड है, जितना उड़ना चाहो उड़ लो, जितना आपके अंदर टैलेंट है यू कैन अर्न। तो यहाँ अनलिमिटेड है, जो जितना बच्चा आज की डेट में टैलेंट रखेगा वो जितना आगे बढ़ेगा। देयर लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर टू डू। बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। There is a question, I think Kashish and Sareen wants to ask. Kashish, आप and Sareen, आपका किन के लिए किस पर्सपेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन है, पहले आप बताएं, फिर मैं उन्हीं पैनलिस्ट से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको जवाब दें। कशिश मैम सहर एंड सहरीन, आप कुछ पूछना चाहते हैं? और दिनेश ना पूछना चाहते हैं। हाँ जी, बताइए, किससे पूछना चाह रहे हैं? कशिश, कैन यू प्लीज रिपीट? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक सो कुछ इशू है कशिश। तो सर, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने एटीटीसी के स्टूडेंट्स को देखा है, आपने ट्रेन भी किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आगे रिकमेंड भी किया है, तो आपको क्या लगता है ये जो हमारा ये हमने स्टार्ट किया है कि इंडस्ट्री को की कनेक्शन स्टूडेंट्स के साथ में, ये लर्निंग मीट्स इंडस्ट्री है, ये हमारा जो स्टार्ट इंटरेक्शन सेशन है, विल इट बेनिफिट इंडस्ट्री और स्टूडेंट्स दोनों को बेनिफिट कर सकता है आगे इन फ्यूचर? एक लाइन में खत्म करूं, इफ यू डोंट माइंड। बेनिफिट तो बहुत है, और आपको एक और बताऊं बात, मैं अपने बेटे को एडमिशन कराने जा रहा हूं आपके पास। अच्छा सर, चलिए, थैंक यू सो मच सर। एक स्टूडेंट है दिनेश, उनको आपसे एक क्वेरी करनी है, उनका एक क्वेश्चन है, तो वो आपसे पूछना चाहेंगे। दिनेश, आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं सर से? या मैम, एक क्वेश्चन था। Am I audible? Yes. Sir, according to as per today, how do you see the future of garment or apparel industry after the sanctions applied by the United States of America on our country? You're talking about the tariff. Yeah. See, tariff is there just time being. It's not going to be like a permanent. If permanent will be there, then we are also finding the other way, other country. Okay, of course, US market is really very, very big. It will be affect our industry, but it's not going to like long time. We will find the way. But sir, there are people who are losing their job. Sorry, can you repeat? Sir, there are people who are losing their job mainly in merchandising department. Yes, I also got information that a lot of people are losing their job, but this will be the timing, as I told you, because Indian government and all the like garment industry, definitely we're going to find out the way, other way. What will be the way? So nothing, no need to worry right now. Just you do whatever you want to do, study hard, and it's not like that. Our industry is going to be slowed down. It's just timing, nothing else. It's just like a big level political game is going on. It will be resolved. Okay. So anyone else from the audience wants to ask something? आई होप, मुझे लगता है हमारे पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी तरह से आपकी सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपकी तरह से पुट अप करने की कोशिश करी है, आपको सबका जवाब मिला होगा। और आगे भी हम इसी तरह का सेशंस करते रहेंगे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जैसे सर, ये लोग जितने भी सीनियर पैनलिस्ट हैं वो सब अपने इंडस्ट्री के अंदर बहुत बिजी रहते हैं, और उनके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। आज इतनी रिक्वेस्ट से हमने इनको कहा है, तो भी आप अपने बिजी शेड्यूल से लोगों ने आपके लिए टाइम निकाला, और ये बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि हम ऑनलाइन के थ्रू भी हम आपको काफी इंफॉर्मेशन और ये नॉलेज दे सकते हैं सीनियर्स के थ्रू। तो इसी के साथ में मैं ऑडियंस पैनलिस्ट से पूछना चाहूंगी कि वो अपनी तरफ से कुछ अगर कहना चाहते हैं तो प्लीज, आप कुछ शेयर करना चाहें तो प्लीज आप कह सकते हैं। Rohit sir, Manoj sir, and Sagi sir, anything you want to share?
apart from what I haven't asked, if you think you want to share, please. Ma'am, one thing only that I would like to share over here, that जैसे मैंने पहले भी कहीं बताया था कि invest max to max amount of rupees on your brain and learn something new skills every day you have to get involved in the new multiple skills जो आपके CV के अंदर एक वेटेज ऐड करेगी. मैं यही कहना चाहूँगा बस. बाकी अगर आपको लगना है तो आप इसको करिए एंड ऑलवेज हैव अ बिगर विजन मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जा सकते हैं उसको फॉलो करें. स्काई हैज नो लिमिट. थैंक यू सो मच रोहित सर. सगीर सर आप और मनोज सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम मेरा बस स्टूडेंट्स को ये सजेशन है कि अपनी स्किल को पहचानें, स्किल डेवलप करें और जैसा रोहित सर बोल रहे हैं विजन बड़ा होना चाहिए, सोच बड़ी. थैंक यू. राइट. और मेरा ये कहना है सारे स्टूडेंट्स को कि जिस एरिया में इंटरेस्ट हो ना, जिस एरिया में लाइक यू कैन से कि मजा आता है, फॉर एग्जांपल डिजाइन एरिया हो गया, मर्चेंडाइजिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, क्वालिटी है, लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स आते हैं. उस एरिया को अगर वो चूज करें ना, काम के साथ साथ उनका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, काम में मजा भी आएगा एंड इन दैट पर्टिकुलर एरिया दे विल ग्रो लाइक एनीथिंग. ये बहुत बड़ा चीज है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है. ये नहीं कि लाइक आप करना चाहते हो मर्चेंडाइजिंग और आपको इन द लाइक फ्रेंड सर्कल्स, पेरेंट्स और अदर्स इन दैट इंप्रेशंस आप कुछ करने कुछ और चले. तो खुद की चॉइस बनाओ, खुद का चूज करो कि करना क्या है. डिजाइन मीन्स हार्डकोर डिजाइन, मर्चेंट मीन्स दैट्स इट. एनीथिंग क्वालिटी में तो क्वालिटी में. मेरा तो सिर्फ यही सजेशन है. So thank you everyone and thank you the audience for taking out this. Hello. So on behalf of ATDC, I thank our panelists for sharing their perspective and to our audience for engaging with us. Together we are shaping a workforce that is industry ready. So I hope the students will keep all these learnings in their mind and implement for their future perspective. With this, I close the meeting and thank you everyone. Thank you for the join. Thank you. Thank you. Thank you.